ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 14 से अपन देखेंगे। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वास्तव में जो जीव है भूतानी अन्नाद् भवन्ति, वो अन्न से होते हैं। हमको खाने पीने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो कुछ ही दिनों में हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारा जीवन किस पे? भोजन पे निर्भर करता है। भगवान बोले अन्नाद् भवन्ति भूतानि, जो जीव है वो कैसे होते हैं? अन्न से उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभवः, और जो अन्न है वो कैसे उत्पन्न होता है? संभव मतलब सम्यक रूपेण भाव होना। तो जो अनाज है वो कहाँ से आता है जी? बारिश से आता है। बारिश कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो देखो फसल चौपट हो जाती है कि नहीं? ज्यादा बारिश आने से फसल चौपट, कम बारिश आने से फसल चौपट। फिर क्या बोले? यज्ञात भवति पर्जन्यो, अब बारिश कैसे होती है? वो यज्ञ से उत्पन्न होती है। और यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होते हैं? यज्ञ कर्म समुद्भव, जो अपने नियत कर्म है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, समुद्भव उनसे समय रूपेण उद्भव होते हैं यज्ञ। अपने नियत कर्तव्य को अच्छे से करने से क्या होता है? वही यज्ञ होता है। नियत कर्तव्यों को अच्छे से करना वही यज्ञ है। और यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से क्या होता है ना? अनाज होता है, और अनाज से क्या होता है? इंसान होता है, जीव होते हैं। ओके, पढ़िए ट्रांसलेशन और परपट। All living bodies subsist on food grains, which are produced from rain. Rain are produced by the performance of yajna, sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. But Srila Baldeva Vishwabhusana, a great commentator on Bhagavad Gita, write as follows: Ye Indriya Agya Sthittam Yagyam Sarvesaram Vishnum Abhracharyatat चयम अस्तिन। कुछ ही बहुत है, तो आप इसको पढ़ दीजिए ना प्लीज। यस, तो ये संस्कृत है वही। हम्म, कहा ये इंद्रिया, इंद्रिय आदि अंगतया अवतिष्ठम यज्ञम सर्वेश्वरम विष्णुम अभ्यर्च्य तत् तेषम अस्नन्ति तेन तत् देह यात्राम संपादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञ पुरुषस्य भक्तः सर्वकिल्बिषेर अनादिकाल विवृद्धेर आत्म अनुभव प्रतिबंध मंदकेर निखिलै पापेर विमुच्यन्ते। पढ़िए। The Supreme Lord, who is known as the Yajna Purusha or the personal beneficiary of all sacrifices, is the master of all the demigods who serve him as the different limb of the body serves the whole. Demigods like Indra, Chandra, and Varuna are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply air, light, and water sufficiently to produce food grains. When Lord Krishna is worshipped, the demigods, who are different limbs of the Lords,
are also automatically worshipped. Therefore, there is no separate need to worship the demigods. For this reason, the devotees of Lord who are Krishna conscious offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. By such action, not only are past sinful reactions in the body vanquished, and the body becomes immunized to all contamination of material nature. When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection. And one who is accustomed to all this practice is contract to all the reaction of past material infection, which is impediments to all the progress of the self-realization. On the other hand, on one who does not do so continue to increase the volume of sinful action, and this prepares the next body to resemble hogs and dogs, to suffer the resultant reaction of all sins. The material world is, is full of contaminations, and one who is immunized by the accepting prasadam of Lord food offered to Vishnu is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subjected to contamination. तो मुझे इस वाले पैरा में बताया गया है कि जो भी आपको जो भी हम जो खाना अपन उगाते हैं वो सारा हमको ये जो रेन से मिलता है, बारिश से मिलता है, और जो बारिश होती है वो हमको यज्ञ करने से मिलती है। ये जो यज्ञ किए जाते हैं जो डेमी गॉड्स को खुश करने के लिए किए जाते हैं। इसी की तरह अगर हम डेमी गॉड्स को अगर हम कृष्ण जी की भी अगर हम उनको खुश कर दे तो भी ये उसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी डेमी गॉड्स हैं वो सुप्रीम लॉर्ड के वो लिम्स के बराबर है। इसलिए हम अगर सुप्रीम लॉर्ड को ही खुश करेंगे तो वो इनडायरेक्टली डेमी गॉड्स को ही खुश करने के बराबर हो जाएगा, और वाइस वर्सा भी। और यहाँ पे वो जैसे बताया गया है कि जो भी यहाँ पे जो भी मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी डिसीज वगैरह जो आती है उनकी उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो ह्यूमन बॉडी रहती है और उनको वैक्सीन दी जाती है। उसी प्रकार से जो भी हम जो फूड अपन जो खाते हैं वो वो जो भी जो फूड रहता है वो पहले सुप्रीम लॉर्ड को हम लोग पहले ऑफर करते हैं, और उसी को हम लोग फिर खाते हैं ऐसा प्रसादम। जो कि प्रसादम जो रहता है जो हमारे अंदर जो सिंफुल एक्टिविटी जो भी सिंफुल चीजें रहती हैं उसकी वॉल्यूम को कम करता रहता है। और इसी के अगेंस्ट में अगर हम ये चीज नहीं करेंगे, अगर हम लॉर्ड को ऑफर किया हुआ फूड नहीं खाते हैं, तो ये सारी सिंफुल जो हमारा एक्शन रहता है इसको ये धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। और ये हमारी नेक्स्ट लाइफ में हमको या तो सुअर या फिर एज अ डॉग हम लोग को उसमें अपने नेक्स्ट इनकारनेशन में हमको ऐसा उसका सिंफुल एक्टिविटीज को फिर झेलना पड़ता है। हम्म, पावरफुल ना। तो अगले जन्म में सुअर कुत्ता बनना है क्या? नहीं बनना है। एक और इसमें एनालॉजी बताइए, बहुत अच्छी एनालॉजी है। कोरोना लॉकडाउन में ये शब्द आप समझ में गए होंगे। एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब महामारी होता है। वैक्सीन मतलब वैक्सीन लगाए है ना। क्या एनालॉजी थी बताइए। क्या एनालॉजी, क्या उपमा दी है प्रभा जी? लो हाईलाइट कर देता हूँ मैं। कौन बता सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है? ये जो हाईलाइट किया ना यही है। व्हेन देयर इज एन एपिडेमिक डिजीज, जब कोई महामारी फैलती है ना, जैसे कोरोना आया था, एन एंटीसेप्टिक वैक्सीन प्रोटेक्ट्स ए पर्सन फ्रॉम द अटैक ऑफ सच। तो सबने वैक्सीन लगवाई थी ताकि कोरोना नहीं हो। सिमिलरली सेम वे में जो भगवान को जो भोग लगाते हैं और जो प्रसाद ग्रहण करते हैं वो वैक्सीन की, एंटीसेप्टिक वैक्सीन की तरह काम करता है बोले। मेटेरियल अफेक्शन जो हमारा है ना, जो बीमारी हमारी है
उससे महामारी से हमारी रक्षा करता है वो। ओके, नेक्स्ट पढ़िए वीर प्रभु। Food grains or vegetables are factually eatables. The human beings eats different kinds of food grains, vegetables, fruits, etc. And the animals eat the refuse of food grains and vegetables, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eating meat and flesh must also depend on the production of vegetarian in order to eat the animals. Therefore, ultimately, we have to depend on the production of the field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky, and such rains are controlled by demigods like Indra, Sun, Moon, etc. And they are all servants of the Lord. The Lord can be satisfied by sacrifices, therefore, one who cannot perform them will find himself in scarcity. That is the law of nature. Yajna, especially the Sankirtan yajna prescribed for this age, must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. तो प्रभु इसमें बताया जा रहा है जो भी जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सभी जो फील्ड का प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स इन सब पे ही डिपेंडेंट रहता है लिविंग के लिए। और जो लोग अगर मीट ईटिंग या फ्लैश ईटिंग करते भी हैं तो वो भी मतलब इनडायरेक्टली इसी पे डिपेंड होते हैं क्योंकि जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो एनिमल्स खाएंगे। फिर वो उनमें मीट या फ्लैश डेवलप होगा उसके बाद फिर उसको अगर खाएंगे तो हर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड वेजिटेशन पे डिपेंडेंट है। और जो ये वेजिटेशन होता है ये मतलब रेन पे डिपेंड करता है सफिशिएंट रेन पर। मतलब ज़्यादा होगी तो फसल खराब हो जाएगी कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा। और ये सब डेमिगॉड्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है मतलब जो रेन है। तो अब और ऐसा बताया गया कि जितने भी डेमिगॉड्स हैं वो मतलब भगवान के लिए एक तरह से वर्क करते हैं। तो अगर हम भगवान को सेटिस्फाई कर देंगे तो हमें सफिशिएंटली सब कुछ मिलता रहेगा। मतलब इस मतलब भगवान को हम यज्ञ के थ्रू सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इस एज का जो यज्ञ है प्रिस्क्राइब्ड यज्ञ वो संकीर्तन यज्ञ है। यस, थैंक यू। तो इसमें एक और पॉइंट प्रभा जी, जैसे अभी एक दो दिन में कोर्ट था जनसंख्या वृद्धि को लेके। जैसे हमारे करिकुलम में टॉपिक्स रहते हैं ना, है ना, पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि हो जाती है तो भैया इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी वगैरह वगैरह जो हम पढ़ते हैं ना पुस्तकों में। तो प्रभा जी क्या बताते हैं उसके बारे में? पढ़ा आपने कोट एक दो दिन में? जी प्रभु मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि मतलब वेजिटेशन तो वेजिटेशन तो पूरा सफिशिएंट सप्लाई करते हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है प्रभु अभी शायद कल पढ़े थे उसको। हाँ, तो प्रभा जी बोल रहे हैं कि भैया जनसंख्या वृद्धि कोई समस्या नहीं है, समस्या है लोगों का पाप। जब लोगों का पाप बढ़ता है ना तो भुखमरी बढ़ती है ना, तो और बढ़नी भी चाहिए प्रकृति का नियम है। तो जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं है, लोगों के पाप बढ़ना वो समस्या है। प्रभुपाद जी बोले इतनी सारी जमीन है, इतना कुछ है, कितनी भी जनसंख्या हो जाए प्रकृति सप्लाई करेगी यदि सब भक्त होंगे तो। हाँ, तो प्रभुपाद जी धो दिए जनसंख्या वृद्धि का जो पूरा कंसेप्ट है, पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं पूरा जो, है ना, टॉपिक है वही कैंसिल कर दिया प्रभुपाद जी ने और प्रभुपाद जी साहब साहब बता रहे हैं, जैसे भगवान ही बता दिया ना, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से भैया जो सारे जीव होते हैं, है कि नहीं। अब फैक्ट्रियों में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है भैया, ये बन रहा है वो बन रहा है, उसको खा के व्यक्ति थोड़ी जीवित रहेगा। अल्टीमेटली तो अन्न चाहिए ना व्यक्ति को खाने के लिए। तो वही पॉइंट पर पाजी तात्पर्य में बता रहे हैं कि सबसे मेन है अन्न। अन्न होता है। हाँ, श्लोक हमारा क्या था, इसको याद कर सकते हैं हम, महत्वपूर्ण श्लोक है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अब देखिए यही टॉपिक यदि अपन चर्चा करें, है कि नहीं, हाँ, किसी स्टूडेंट को बताए अपन कि बारिश कैसे होती है, हाँ, या हम क्या स्टडी किए हैं कि बारिश कैसे होती है।
बिल्कुल हम ऐसे करिकुलम में बिल्कुल स्टडी नहीं किया टेक्स्ट बुक्स में कि भैया कि यज्ञ करने से बारिश होती है थोड़ी की ऐसे स्टडी। यज्ञात भवति पर्जन्यो है कि यज्ञ से बारिश होती है? अन्नाद भवन्ति भूतानि, है पर्जन्यात संभवा। फिर और वो जो पर्जन्य है वो कैसे होती है? यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव है। तो हमारी स्टडी में बताइए हमने क्या पढ़ा? बारिश कैसे होती है बताइए, बारिश का कारण क्या है? हमारा हमारी पाठ्य पुस्तकें हमें किस प्रकार से नास्तिक बनाती है देखिए बताइए पाठ्य पुस्तक में क्या पढ़ा? बारिश कैसे होती है? कंसेप्ट क्या है बारिश होने का? बादल कैसे बनते हैं? फिर सन बारिश की हीट से ये ओशन वाटर होता है एवापोरेट करता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और ये रेन होता है। हाँ, ओशन वाटर इवेपोरेट होता है भैया, गर्मी ज्यादा हो जाती है तो इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, फिर कंडेंस हो जाता है, क्लाउड बन जाते हैं। अब वो क्लाउड इधर उधर घूमते रहते हैं और जहाँ पे उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है ना, पेड़ पौधे ज्यादा रहते हैं, हरियाली ज्यादा रहती है, तो वहाँ पे बारिश हो जाती है। ये तो कंसेप्ट हमने पढ़ा ना टेक्स्ट बुक में। तो इसमें कहाँ भगवान आ गए, कहाँ यज्ञ आया तो लेकिन पॉइंट ये है भैया, जो समुद्र का पानी है, खारा पानी है, उसमें जो वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन है, वो क्वालिटी किसने डाली? है ना? ये तो जो पत्थर है वो तो ऐसा नहीं उड़ता ना हवा में, तो पानी को भाप बनने का क्वालिटी किसने दिया? भगवान ने दिया ना, ये साइंटिस्ट ने दिया तो अल्टीमेटली, है ना, सर्व कारण कारणम, कोई भी कंसेप्ट के पीछे जाएंगे ना, है ना, कारण के कारण पे जाएंगे, अल्टीमेट कोज पे जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। नहीं तो क्या ऊपर ऊपर से देखेंगे तो फिर ऐसे समझ में आएगा कि देखो बारिश तो ऐसे होती है, कहाँ भगवान ने, कहाँ यज्ञ से बारिश हो रही जी वाले, है कि नहीं तो इस तरीके से, तो डेप्थ में जाके जब हम, जैसे प्रभुपाद जी के समय जब विदेश में थे, तो जो क्रिश्चियन है वो लोग प्रे करते हैं ना, गिव अस और डेली ब्रेड तो कुछ नास्तिक थे, वो बोले कि प्रार्थना कर लिया, मिल गई ब्रेड, नहीं मिली ना, चलो हम तुमको ब्रेड देते हैं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हम ही तुमको ब्रेड दे देंगे हम श्रेष्ठ आपके जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट जो है उनसे। प्रभुपाद जी बोले मूर्ख है, दोनों ही मूर्ख है, अल्टीमेटली देने वाले कृष्ण है ना सबको ब्रेड। बोले खेत में जो अनाज हुआ उससे ब्रेड आई ना, वो थोड़ी है अल्टीमेटली देने वाले, वो जो लोग नास्तिक लोग जो दे रहे हैं ब्रेड, वो थोड़ी देने वाले हैं अल्टीमेटली। अल्टीमेटली तो खेत में जो अनाज होता है वो जो बारिश पर निर्भर करता है, जो यज्ञ से होती है बारिश, यज्ञ कर्म समुद्भव से होता है, तो वो कारण है भगवान अल्टीमेटली देने वाले हैं। तो इस तरीके से वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जब हम और डेप्थ में जाएंगे, एक कौन से तो साइंटिस्ट थे अपन डिवाइस में बताते हैं ना कि ऊपर ऊपर से यदि हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान नहीं है, लेकिन साइंस के डेप्थ में जाएंगे तो समझ में आएगा कि द गॉड डज एग्जिस्ट, भगवान तो एग्जिस्ट करते ही हैं भाई, सब कुछ वही मैनेज कर रहे हैं, है कि नहीं? ओके, तो नेक्स्ट श्लोक पढ़िए राठौड़ प्रभु जी। जी भैया। आप- आप- को लेने जाना पड़ता है, मुझे आप से आता है तो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी। प्लीज। मैं पहले एक बार थोड़ा सा इसको बता एक्सप्लेन कर देता हूँ जितनी देर में, हो सकता है आपकी आवाज भी ठीक हो जाए, कनेक्शन ठीक हो जाए आपका। तो फिर यज्ञ कैसे होता है? कर्म समुद्भव, ये जो नियत कर्म है हमारे, वो करने से क्या होता है? यज्ञ होता है। अब वो कर्म कैसे होते हैं? ब्रह्म उद्भवम विधि, वो ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म मतलब शास्त्र, वेदों से, वेदों में जो बताए गए हैं नियत कर्म, वो है, वो कर्म होते हैं वास्तव में, वो करने से यज्ञ होता है। और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और जो वेद है शास्त्र है वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? भगवान से उत्पन्न हुए हैं। अक्षर समुद्भवम, अक्षर से सम्यक रूपेण उद्भव हुए हैं, है ना? तस्मात, इसलिए सर्वगतम ब्रह्म, जो सब जगह फैला हुआ जो ब्रह्म है, जो भगवान है, जो दिव्य है ना ब्रह्म है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, नित्य मतलब नित्य रूप से, यज्ञ मतलब यज्ञ में, प्रतिष्ठितम मतलब प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित रहते हैं, स्थित रहते हैं।
इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे कर, जिसमें पहले वाले श्लोक में भगवान बता दिए यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होता है, है ना, कर्म समुद्भवम, कर्म करने से होता है। अब कर्म कहाँ से आता है भैया? कर्म आते हैं जो शास्त्रों में जो नियम बताए हैं, है ना, नियत कर्म बताए हैं, वो वहां से आते हैं। जो नियत कर्म जो है हमारे, वो ब्रह्म से उद्भव होते हैं। जो ब्रह्म है शास्त्र, वो कहाँ से आते हैं? अक्षर समुद्भव, भगवान से उत्पन्न हुए हैं। भगवान ही, है ना, शास्त्र वेदों को दिए हैं, शास्त्रों को दिए हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए जो हर जगह जो ब्रह्म है, वो वास्तव में जो भगवान है या जो शास्त्र है, वो क्या है? हमेशा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो नित्य रूप से यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, है ना। यज्ञ के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं बेसिकली। ऊपर के जो श्लोक सारे चल रहे हैं सेक्रीफाइस यज्ञ के बारे में सब बता रहे हैं। ओके, अब पढ़िए प्रभु जी, राठौर प्रभु जी। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् स्वरगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-preventing transcendence is internally situated in acts of sacrifice. यस, हरे कृष्ण. तो प्रभु जी इसमें बताया रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर प्रेस्क्राइब्ड इन द वेदाज। जो भाई नियत कर्म है वो वेदों में बताया गया है, हैं? कर्म ब्रह्म समुद्भवम, कर्म ब्रह्म उद्भवम, जो जो कर्म है, नियत कर्म है, वो शास्त्रों में, वेदों में ब्रह्म में उद्भव बताया गया है। विधि मतलब ऐसा तुम जानो। एंड द वेदाज आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, और वेद है वो कहाँ से आए? वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से ही, जो परम, है ना, ब्रह्म है, परम ब्रह्म जो है, उन्हीं से साक्षात वेद आए हैं। कंसिक्वेंटली द ऑल परवेडिंग ट्रांसेंडेंस है, परिणाम स्वरूप जो सर्वगतम जो ब्रह्म है, सब जगह फैला हुआ जो ट्रांसीडेंस है, जो ब्रह्म है, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता जो है, वो क्या है? इज इटरनली सिचुएटेड इन एक्ट्स ऑफ सेक्रीफाइस, वो जो सेक्रीफाइस के जो एक्ट्स हैं, यज्ञ के जो कार्य हैं, उनमें प्रतिष्ठितम, उसमें स्थित है। तो अब तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, तो और क्लियर हो जाएगा क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, तो कैसे प्रो पढ़ेंगे? आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है ब्रो माइक में। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, पढ़िए। यज्ञ कर्ता कर्म or the necessity of work for the satisfaction of Krishna only is more expressly stated in this verse. If we have to work for the satisfaction of Yajna Purush Vishnu, then we must find out direction of work in Brahman or transcendental Vedas. The Vedas are therefore codes of working directions. Anything performed without the direction of Veda is called vikarma or unauthorized or sinful work. Therefore, one should always take direction from Veda to save from the reaction of work. As one has to work in ordinary life by the direction of the state, one similarly has to work under the direction of supreme state of the Lord. Such direction in Ved are directly manifested from breathing of Supreme Personality of Godhead. It is said, Asya Mahato Bhutasya Nisvasitam Ida Yada Rigvedo Yajurveda Samaveda Tatha Anivirgashaha. The four Ved, namely Rigved, Yajurved, Samved, and Atharved, are all emanations from the breathing of the great personality of Godhead. Brihad Aranyakya Upanishad, the Lord being omnipotent can speak by breathing airs, for as it is confirmed in the Brahma Samhita. The Lord has omnipotence to perform through each of his senses the action of all other senses. In other words, the Lord can speak through his breathing and can impregnate by his eyes
In fact, it is said that he glanced over material nature and thus furthered all living entities. After creating or impregnating the conditioned souls into the womb of the material nature, he gave his direction in the Vedic wisdom as to how such conditioned soul can return home back to Godhead. We should always remember that the conditioned soul and material nature are all eager for material enjoyment, but the Vedic direction are so made that one can satisfy one's perverted desire, then return to Godhead, having finished his so-called enjoyment. It is a chance for the conditioned soul to attain liberation. Therefore, the conditioned soul must try to follow the process of yajna by becoming Krishna conscious. Even those who have not followed the Vedic injunction may adopt the principle of Krishna consciousness, and that will take place in yajna or karma. तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें पर्वत में एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कि हम ये इंडिया में रहते तो हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो वेद है वो भगवान के द्वारा हम सब जो जीव हैं उनके द्वारा बताया गया है। तो हम सब जीवों का भी परम कर्तव्य होता है कि हम हमारा जो जीवन है वो वेदों के बताए गए विधि विधान के उस पे जिए और वेद हमें यज्ञ करने का आदेश देते हैं। तो इस कलयुग में जो यज्ञ रिकमेंडेड है वो है हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ। सो इसलिए हम सभी को इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो वही इस युग का सबसे बड़ा यज्ञ है। और यहाँ पे एक और बात बताई गई प्रभुपाद ने, जैसे कि जो भगवान है वो सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान है। जैसे कि हम हमारी आंख से सिर्फ देख सकते हैं, नाक से सिर्फ सूंघ सकते हैं, मुंह से सिर्फ बोल सकते हैं, पर जो भगवान है वो ओमनीपोटेंट है। मतलब वो आँख से देख भी सकते हैं, पर जब हम उनको भगवान को प्रसाद ऑफर करते हैं, भोग ऑफर करते हैं, तो वो उन आंखों से खा भी लेते हैं। तो ऐसे भगवान अपनी हर एक संसिस से सब कुछ कर सकते हैं। वो अपनी आँख से देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, अपने कानों से वो सब कुछ कर सकते हैं, अपने बोलने से वो सब कुछ कर सकते हैं। तो दैट इज वाई ही इज सुप्रीम लॉर्ड। यस प्रभु। और कुछ और आंखों से क्या कर सकते हैं भगवान? मतलब प्रेग्नेट भी कर सकते हैं। जैसे कोई पिता है वो माता को गर्भवती करते हैं, है कि नहीं? उस तरीके से भगवान केवल आंखों के माध्यम से जो भौतिक प्रकृति है उसको गर्भवती कर सकते हैं, इम्प्रेग्नेट कर सकते हैं, और वहां से लिविंग एंटिटीज फिर क्रिएट होती हैं इस तरीके से। तो ये वास्तव में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं ये वाला श्लोक, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, जिनके अंग सारे कार्य कर सकते हैं। भगवान के अंग, भगवान के शरीर हमारी तरह नहीं है, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, और उनका हर एक अंग सारे कार्य कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ना? और ये सारे वेद देखिए कहाँ से आए? भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि देखो जो व्यक्ति को नियत कर्म करना चाहिए, है ना, और नियत कर्म साक्षात अक्षर से समुद्भव होता है, भगवान से आते हैं, है ना। तो ये सारे जो वेद हैं वो भगवान के, है ना, कैसे उत्पन्न हुए? भगवान की ब्रीदिंग से उत्पन्न हुए हैं। जैसे भगवान के अलग अलग अवतार हैं, तो एक अवतार है ना उसमें, जैसे हैग्रीव अवतार है तो सारे शास्त्रों का भगवान रक्षा किए हैं। जैसे ब्रीदिंग से वराह अवतार आते हैं, है ना। ब्रह्मा जी सांस लेते छोड़ते तो वराह अवतार आ जाते हैं। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आते, मतलब कभी क्यों कौन प्रकट होते हैं, मेरे से कौन प्रकट होते हैं, हो क्या रहा है ना, सृष्टि करते तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते बेचारे। तो इस तरीके से भगवान के श्वास से ही, ब्रीदिंग से ही चारों वेद आते हैं। और वेदों में सब कुछ है, मेटेरियल स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना, मेटाफिजिकल, है ना, एग्रीकल्चर, मेडिकल, है ना, जो भी जितना भी सब नॉलेज है वो सब है, मेटेरियल स्पिरिचुअल सब वेदों में है। हाँ, तो बॉडी के लिए, सोल के लिए, बॉडी और सोल को टुगेदर रखने के लिए जितना कुछ नॉलेज चाहिए वो सब वेदों में है। वेद मतलब ही नॉलेज है कि नहीं? तो भगवान इस तरीके से ओमनीपोटेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। है। तो देखिए विकर्म का कंसेप्ट बताया है। शास्त्रों के नियमों के हिसाब से हम कर्म करेंगे तो वो कर्म है, और बाकी उनके अनुसार यदि नहीं करेंगे तो क्या वो विकर्म हो जाएगा, सिंफुल वर्क हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है अरे इतने सारे नियम कानून काय को फॉलो करना जी, है ना, अपने मन के हिसाब से चलो, है ना, खुद के अपना जीवन जियो, मस्त रहो,
है कि नहीं? क्या ट्रैफिक लॉ फॉलो करना है ऐसा? लेकिन जब पुलिस चालान काट देती है तो फिर साइकिल ठिकाने आ जाती है कि नहीं? उसी तरीके से जब प्रकृति के नियमों को, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते, फिर जीवन में जब कष्ट आते हैं, तो फिर लगता है अरे नहीं नहीं, फॉलो कर लेना चाहिए था। तो इस तरीके से वो हमारे भले के लिए है। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, ऐसे नियमों को पालन करने से हम बंधेंगे नहीं, हम फ्रीडम, हम आजाद हो जाएंगे। इस तरीके से समझ आए। ओके, किसी का कुछ समय हो गया, किसी का कुछ क्वेश्चन कमेंट? आलोक आलोक प्रो के भी दर्शन हुए काफी दिनों बाद है, मतलब काफी दिनों बाद, मतलब 5-7 दिन हो गए, बीच में तो क्लास बंद हो जाती। कैसे हैं आलोक प्रो? ठीक है। ठीक है प्रभु जी। एक्चुअल में वो थोड़ा रेगुलेशन हाँ, डिसकंटिन्यू हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा इधर हो डिसकंटिन्यू गया। हो गया तो क्या, हम डिसकंटिन्यू हुए तो आप भी डिसकंटिन्यू हो गए ना। ठीक है, तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है, तो ये समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।